Hello guys, this is the time where we solve an actual graph problem using Dijkstra's algorithm. So what is the problem statement for this algorithm? Find the shortest distances from the source vertex B to every other vertex in the given weighted graph. Okay, so let's not waste any time and let's start solving the problem. So for solving the problem, this is my setup. Okay, I will explain the setup. First I have drawn graph over here so that I can see the graph anytime I want. On the right hand side I have written relaxation formula. Relaxation formula is needed at each and every step of solving the problem. That's why I have permanently written it on the right side. And here on the lower left side I have drawn a table. In this table, I will update the distances of every vertex in each and every step during solving the problem. Now let me explain the relaxation formula quickly. Relaxation formula says if d of u plus cost of uv is less than d of v, then d of v is equal to d of u plus cost of uv. Now what is du? Du means आप जिस वर्टेक्स पे पहुंच गए हो उस वर्टेक्स तक का रास्ता, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स. स्टार्टिंग वर्टेक्स है बी. सो जब आप किसी वर्टेक्स पे पहुंचोगे तो बी से उस वर्टेक्स तक का रास्ता मतलब डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ वी क्या होता है, जहां पे आप जाना चाहते हो वो आपका वी होता है, दैट इज वर्टेक्स वी. तो फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स टू द वर्टेक्स वी मतलब डी ऑफ वी. एंड सी ऑफ यू वी मतलब कॉस्ट ऑफ यू कॉमा वी, मतलब यू वर्टेक्स से वी वर्टेक्स तक का जाने का जो रास्ता है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉस्ट ऑफ यू वी. You will understand this very clearly when we are actually solving the problem. Let's start solving. Now observe, in this table I have written b in a large font because my starting vertex is b, and down the line I have written all vertices because I want to keep track of all the vertices in each and every step. Now first I am at b because that is my starting vertex. So I'm starting from b and in step 1 I am reaching at b. So distance from b to b is 0, right? So I will update the first distance as 0. Now in first step I will just walk to b. I will not move forward. I will not walk to any other vertex. So every other vertex is unreachable to me. To denote that in the table, the unreachableness, I will update every distance as infinity. So this means in one's first step, the only vertex reachable is b and the cost of going to b is 0, and a is infinity distance away, c is infinity distance away, d is infinity distance away, E is infinity distance away, and F is also infinity distance away. Let me update this on the graph. So B is 0, others are infinity distance away. Correct? Let's go to step 2. Now step 2, from step 2, we are going to use relaxation formula in each and every step because we are going to update the distances. Okay? Now first let me draw a small table. So what is U? What is d of u? What is v? What is d of v? And what is c of uv? This is my table. Let me just neatly draw the table so that it will be easy to understand. Okay, we'll update the values at each and every step. Okay,
Now our step 2. We are at B. Okay, and what I am going to do is, now I am going to move forward from B. So at each step I will travel only one edge, single edge. I will not move forward from that edge. Okay, so in step 2, how many vertices are reachable to me? From B, direct edges are B to A, B to C, and B to D. So 3, A, C, and D. What I will do now, using relaxation formula, I will update the distances of all 3 vertices. Let's consider the first vertex as A. So U means जहां तक आप पहुंच गए हैं, करेक्ट. सो मैं B पे पहुंच गई हूं, तो मेरा U है B. D of U मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स से लेकर जहां तक मैं पहुंची हूं उस रास्ते का डिस्टेंस, मतलब फ्रॉम B टू B उसका डिस्टेंस है 0. नाउ V, जहां पे मैं जाना चाहती हूँ वो वर्टेक्स, वो है A. D of V मीन्स स्टार्टिंग वर्टेक्स से लेके A तक का रास्ता. अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? इस टेबल से पता चलेगा. ये स्टार्टिंग वर्टेक्स से A तक का रास्ता है इन्फिनिटी अभी. सो D of V इज इन्फिनिटी. एंड C of UV मतलब कॉस्ट ऑफ UV मतलब कॉस्ट ऑफ B टू A इज, ये है ये वाली एज, कॉस्ट ऑफ B टू कॉस्ट ऑफ A मतलब इस एज का कॉस्ट विच इज 4. सो आई विल अपडेट इट एज 4. अब हमें क्या करना है? रिलैक्सेशन फॉर्मूला जो बोलता है वो चेक करना है. लेट्स चेक. D of U मतलब 0 प्लस कॉस्ट ऑफ UV मतलब 4 इज लेस देन D of V. D of V क्या है? इन्फिनिटी. ये ट्रू है क्या? Is 4 less than infinity? Yes, it is true. So what will happen now? Then D of V becomes D of U मतलब 0 plus cost of UV मतलब 4. So D of V मतलब A तक जाने का रास्ता, उसका डिस्टेंस बनेगा 4. तो आई विल अपडेट इट इन द टेबल. 0 का 0 ही रहेगा. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट. ओके, अब लेट्स ट्राई टू डू विथ मी. ओके, मतलब आपको क्या करना है, जैसे मैं करती जाऊंगी वैसे आपको भी अपडेट करना है. ठीक है, लेट्स गो टू स्टेप. नो, स्टेप विल बी सेम, जस्ट वर्टेक्स विल बी डिफरेंट. अब हमारा यू क्या है? बी ही है. डी ऑफ यू क्या है? 0 ही है. वी क्या है हमारा? सी तक जाना है हमें, तो सी है हमारा वी. डी ऑफ वी क्या है? इन्फिनिटी है. सी ऑफ यू वी मतलब कॉस्ट ऑफ यू वी क्या है? बी तक, बी से लेके सी तक जाने के रास्ते का कॉस्ट विच इज 1. सो मैं 1 लिखूंगी यहाँ पे. नाउ 0 plus 1, is it less than infinity? Yes, it is less than infinity. So D of V मतलब D of C क्या बनेगा? 1 बनेगा. तो I will write 1 over here. Now let's do the third vertex which is reachable from B directly. अब क्या करेंगे? B से D तक जाएंगे. यहाँ से B से D तक जाएंगे. तो U क्या है हमारा? B है. D of U है 0. V क्या है हमारा? D. D ऑफ V क्या है? यहाँ पे देखो, इन्फिनिटी. करेक्ट. और कॉस्ट ऑफ यू वी है, मतलब ये एज जो है D से B से D तक जाने वाला, उसकी कॉस्ट विच इज 3. सो इज 0 प्लस 3 लेस देन इन्फिनिटी? यस, इट इज ट्रू. सो D ऑफ V मतलब डिस्टेंस ऑफ D becomes 3. So I will write 3 over here. अब आगे की वर्टेक्स देखते हैं. तो हम इस स्टेप में कहाँ कहाँ का डिस्टेंस हमने देखा? हमने डिस्टेंसेस देखे ए का, सी का और डी का फ्रॉम बी. करेक्ट. अभी तक हम एफ तक और ई तक नहीं गए हैं, लेकिन उसके डिस्टेंसेस कैसे अपडेट होते हैं देखो. अब हम, मुझे जाना है ई तक. सो माय स्टार्टिंग वर्टेक्स मतलब यू विल बी बी. डी ऑफ यू इज 0. अब वी देखो,
v इज e, ठीक है, और d ऑफ v इज इंफिनिटी। कॉस्ट ऑफ यूवी, अब मुझे क्या करना है, e से b से e तक जाना है मुझे, तो मैं किस रास्ते से जाऊं ये मुझे देखना है। मैं यहां से जाऊं कि ऐसे डायरेक्टली जाऊं, कि ऐसे जाऊं, कि ऐसे जाऊं, ये अभी तक मुझे पता नहीं है, बिकॉज शॉर्टेज डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं आगे नहीं गई हूँ, ई तक मैं पहुंची नहीं हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंसिडर इट एज इंफिनिटी ओनली। तो सी ऑफ यू इज इंफिनिटी, बिकॉज मुझे रास्ता ही पता नहीं है कैसे जाना है ई तक। सो इज जीरो प्लस इंफिनिटी लेस देन जीरो? इंफिनिटी के केस में वी कैनॉट कंपेयर, सो वील से वी डोंट नो, एंड इफ यू डोंट नो इन दैट केस वो ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली डी ऑफ एफ विल ऑल्सो बी इंफिनिटी, बिकॉज हमें रास्ता ही पता नहीं है एफ तक का। सो ये हो गया स्टेप 2, और स्टेप 2 में हम पहुंचे हैं ए सी और डी तक, जिनके रास्ते के डिस्टेंस हमें पता है, वो अपडेट हो गए 4 1 एंड 3। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस ढूंढने हैं हर एक वर्टेक्स के। तो इस पॉइंट में मैं अज्यूम करूंगी कि आगे तक के जो रास्ते हैं वो शायद अभी जो शॉर्टेस्ट है वहां से आगे जाते होंगे। मतलब बी से अगर सी तक जाने का डिस्टेंस है 1, तो मे बी यहाँ से आगे जाकर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस मिल जाएंगे। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट 1 फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से ये मुझे सिलेक्ट करना है। अब ये सर्कल कर दिया मैंने, मतलब उसका सिलेक्शन कर दिया, इसे बोलते हैं उस वर्टेक्स को रिलैक्स करना। मतलब उसे चूज किया मैंने, वो पाथ को मैंने चूज किया, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऐसे मैंने मान लिया। तो ये बाद में कभी अपडेट नहीं होगा, जिसे मैंने सर्कल किया है, जिसे मैंने रिलैक्स किया है, दैट विल नॉट अपडेटेड एनी फर्दर। ओके, सो अब मैं क्या करूंगी, मैं सी तक पहुंच गई हूँ, तो इसे मैं डार्कन करती हूँ, ठीक है, ये मैंने ट्रैवल कर लिया। अब मैं कहाँ पे पहुंची हूँ, सी पे पहुंची हूँ, इसका मतलब मेरा यू क्या है, सी है। अब मुझे डी यू क्या है मेरा, ये देखो यहाँ पे, मतलब सी तक जाने का डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग वर्टेक्स विच इज बी, बी से सी तक जाने का डिस्टेंस क्या है 1। अब मुझे आगे बढ़ना है सी से, तो सी से डायरेक्ट एजेस कौन से हैं, लेट्स सी, ये एक एज है, ये एक एज है, और ये एक एज है। सी से बी तक का रास्ता तो 1 हमें पता चल गया है और वो रिलैक्स हो गया है, तो हम वो रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स सी, सी से ए तक का क्या होता है, ठीक है। सारे वर्टेक्स को ट्रैवल करना है, सारे वर्टेक्स को जाना है हमें फ्रॉम सी, बिकॉज वी आर करंटली एट सी। अब हमारा वी क्या है, ए, डी ऑफ वी क्या है, मतलब पहले वाला ए का डिस्टेंस इज 4, और कॉस्ट ऑफ यूवी मतलब कॉस्ट ऑफ सी से ए तक जाने का कॉस्ट, वो है 2, यहाँ पे दिख रहा है, यस, तो ये रहा 2। अब रिलैक्सेशन फॉर्मूला क्या बोलता है, डी ऑफ यू प्लस cost of uv which is 2, is it less than 4? Now let's solve ahead. Is 3 less than 4? Yes, it is less than 4. So what we'll do, we will update d of v, मतलब d of c, it will be what, cost of uv plus d of u, मतलब 1 plus 2 मतलब 3, तो ये बन जाएगा 3 नाउ, ठीक है। b तक का डिस्टेंस 0 है, वो 0 ही रहेगा। सी तक का डिस्टेंस रिलैक्स हो गया है बी से, तो वो 1 ही रहेगा। अब जाते हैं डी की तरफ। नाउ हमारा यू सी ही रहेगा, बिकॉज हमें सी से आगे बढ़ना है। डी ऑफ यू इज 1, बिकॉज स्टार्टिंग वर्टेक्स से लेकर सी तक का जाने का रास्ते का डिस्टेंस है 1। अब जाएंगे डी की तरफ, सो हमारा वी है डी, डी ऑफ वी क्या है यहाँ पे देखो 3, और कॉस्ट ऑफ यूवी देखो, कॉस्ट ऑफ यूवी मतलब ये एज का रास्ता इज 6, करेक्ट।
अब लगाते हैं रिलैक्सेशन फॉर्मूला। डी ऑफ यू मतलब 1 plus cost of uv which is 6, is it less than 7 less than 3? No, it is not true. So उस केस में हमें d of v अपडेट नहीं करना है, मतलब d तक जाने का रास्ता 3 ही रहेगा। ठीक है, और अभी भी हमें e और f तक जाने का रास्ता पता नहीं है, तो वो इंफिनिटी ही रहेगा। सो हमारा सेकेंड स्टेप भी डन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या क्या अपडेट हुआ? b का डिस्टेंस 0 है, 0 ही रहा। a तक का डिस्टेंस 3 हो गया, c का डिस्टेंस 1 है। बिकॉज इट इज रिलैक्स्ड ये चेंज नहीं होगा अब। ठीक है, d का डिस्टेंस 3 है, 3 ही रहा। e का डिस्टेंस इन्फिनिटी, f का डिस्टेंस इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं हर एक वर्टेक्स को, तो हम प्रीवियस वर्टेक्स कौन सा है वो यहाँ पे छोटे से ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे b से प्रीवियस वर्टेक्स क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि b से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। a का प्रीवियस वर्टेक्स क्या है, a तक जाने का रास्ता कहाँ से कहाँ से जाता है, b से c तक, c से a तक, मतलब a का प्रीवियस वर्टेक्स है c। अब c का रास्ता, c का प्रीवियस वर्टेक्स क्या है, b। d का प्रीवियस वर्टेक्स क्या है, ये भी डायरेक्ट एज है, ये रास्ता हमने चूज किया, करेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो भी b है। और इन दोनों का e और f का हमें अभी तक रास्ता पता नहीं है, तो लेट्स मूव अहेड टू स्टेप 4। ओके, स्टेप 4 में कौन से डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, 0 वही रहेगा, 1 वही रहेगा, और हमें कुछ तो रिलैक्स करने पड़ेगा आफ्टर स्टेप 3। तो रिलैक्स करने के लिए 1 से बढ़कर जो भी नंबर है, डिस्टेंस है, उसे चूज करना है। अब यहाँ पे 3 और 3 सेम ही है, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डजेंट मैटर, किसी भी 3 को आप चूज कर सकते हो। आई विल चूज ये, तो ये मैं 3 ही लिखूंगी। अब मैं कहाँ पे पहुंच गई, डी पे, करेक्ट, तो ये मैं डी का ऐसा रास्ता बना लेती हूँ। तो 2 रिलैक्स हो गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट, बी से सी तक का रिलैक्स्ड है, बी से डी तक का रिलैक्स्ड है, उनसे ज्यादा कम वाले डिस्टेंस हमें नहीं मिलने वाले। अब मुझे क्या करना है, डी से आगे बढ़ना है। डी से आगे कौन सी एज जाती है, 1 2 और 3। डी से सी तक जाती है, डी से ई तक जाती है, डी से एफ तक जाती है। तो लेट्स अपडेट। अब हमारे यू क्या है, डी है। डी ऑफ यू क्या है, यहाँ पे देखो टेबल में 3 है। अब v, तो पहले मैं कंसिडर करती हूँ d से c तक का रास्ता। ठीक है, d ऑफ v क्या है मेरा, c तक जाने का रास्ता क्या है, 1, और c ऑफ uv मतलब कॉस्ट ऑफ c टू d या फिर d टू c है 6। नाउ लेट्स अप्लाई द रिलैक्सेशन फॉर्मूला। d ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ uv, इज इट लेस देन 1, 9 लेस देन 1, नो, एंड नो के केस में हमें वो अपडेट नहीं करना है। तो सी का डिस्टेंस, अरे सी का डिस्टेंस तो रिलैक्स हो गया था, वो करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन हमें ये पता चला कि एक बार अगर रिलैक्स हो गया तो फिर से अपडेट नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जाएंगे दूसरी वर्टेक्स तक। सी हो गया, अब ई की तरफ जाते हैं। सो हमारा यू है डी, डी ऑफ यू है 3, वी है ई, डी ऑफ वी क्या है, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी, और कॉस्ट ऑफ यू वी क्या है, डी से ई तक जाने का रास्ता, मतलब ये वाला रास्ता, ये है 3। सो इज डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी लेस देन डी ऑफ वी, इज 6 लेस देन इंफिनिटी, यस। और जब यस आता है तो हम अपडेट करते हैं। अपडेट कैसे करते हैं, डी ऑफ वी मतलब
डी ऑफ ई बन जाता है डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू विच इज 6। तो ये हो गया अपडेट। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट वर्टेक्स की तरफ। अब हम जाएंगे एफ की तरफ। डी से एफ तक डायरेक्ट एज है तो हम एफ को जा सकते हैं। तो हमारा वी बन गया एफ। डी ऑफ वी क्या है? इन्फिनिटी है। और कॉस्ट ऑफ यू वी मतलब कॉस्ट ऑफ डी टू एफ क्या है? 5 है। यहाँ ग्राफ में देखिए ये है 5। ठीक है, तो अब लगाते हैं रिलैक्सेशन फॉर्मूला। डी ऑफ यू मतलब क्या? डी तक का डिस्टेंस स्टार्टिंग वर्टेक्स से, विच इज यहाँ पे देखो 3 है, टेबल में देख सकते हो आप। प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी क्या है? 5। इज दिस लेस देन डी ऑफ वी? डी ऑफ वी है इन्फिनिटी, सो 8। इज दिस लेस देन इन्फिनिटी? यस, इट इज लेस। सो एस की केस में क्या करते हैं हम? डी ऑफ वी अपडेट करते हैं, मतलब डी ऑफ एफ अपडेट हो जाएगा विथ व्हाट वैल्यू? डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी। तो ये क्या है? 3 प्लस 5 विच इज 8। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 8। और अब ए तक का रास्ता देखते हैं। ठीक है, अब मैं डी पे हूँ, राइट? मैं डी पे हूँ तो मैं ए तक डायरेक्टली जा सकती हूँ क्या डी से? ऐसा कुछ एज है क्या? नहीं है, राइट? तो मैं क्या करूंगी, ए का डिस्टेंस जो है वही लिखूंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रिलैक्स हुआ। ये ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, ये रिलैक्स हो गया लास्ट स्टेप में। अब हमें और कुछ रिलैक्स करना है। तो बचा क्या है? 3, 6 और 8 बचा है। 3, 6 और 8, इसमें से किसी को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए हमेशा जो स्मॉलेस्ट है उसे चूज करना है। तो मैं ये रिलैक्स करूंगी। ठीक है, 3 चूज करूंगी, और जिसे रिलैक्स किया है उससे आगे की एजेस देखनी है। तो मुझे क्या करना है? ए रिलैक्स किया मैंने अभी, मतलब मैंने ये चूज किया रास्ता ए तक का, तो मैं ब्रैकेट में उसका प्रीवियस वर्टेक्स लिखती हूँ। सी, इसका है बी, इसका है बी, ये था डी, और ये भी है डी। करेक्ट, डी से आगे बढ़े थे हम, अब हमें और आगे बढ़ना है। पहले ए को चेक करते हैं। ए से कौन से एजेस जाते हैं? ए टू बी और ए टू सी। और ये दोनों, बी का 0 डिस्टेंस है, इट इज रिलैक्स्ड। सी का 1 डिस्टेंस है, इट इज ऑलरेडी रिलैक्स्ड। तो इसमें कोई अपडेशन नहीं होगा, तो ये हम डायरेक्टली रिलैक्स कर सकते हैं। और वहां पे सिर्फ मेंशन कर दीजिए एग्जाम में कि सिंस ऑल द एजेस आर रिलैक्स्ड फ्रॉम दिस वर्टेक्स इट कैन बी रिलैक्स्ड। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? नेक्स्ट रिलैक्सेशन कौन सा यूज करेंगे हम? 6 और 8 में से क्या स्मॉलर है? 6 स्मॉलर है, तो मैं 6 को रिलैक्स करूंगी इस स्टेप पे। मतलब मैंने किस रास्ते को फिक्स कर दिया? ई तक के रास्ते को। मैं ई तक पहुंच गई बी से, और प्रीवियस क्या है? डी है, मतलब मैं बी से डी तक आई और डी से ई तक गई। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ई। और अब मैं कहाँ पहुंची हूँ? ई पे पहुंची हूँ। तो ई पे पहुंचने के बाद मेरा यू क्या बन जाता है? ई बन जाता है। डी ऑफ यू क्या है? यहाँ पे देखो जो रिलैक्स हुआ है वो है 6। अब मुझे डी से, सॉरी, ई से आगे बढ़ना है। ई से आगे सिर्फ 2 एज जाते हैं, वो है ये ईडी और ईएफ। ईडी तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, हमने ये रिलैक्स कर दिया है डी को, और ई को भी हमने रिलैक्स किया, तो ये रिलैक्स हो गया। अब बचा सिर्फ एफ, तो ये एज हमें चेक करना है अभी। तो क्या करूंगी मैं? वी क्या है मेरा? एफ है। डी ऑफ वी क्या है? यहाँ पे देखो 8 है। सी ऑफ यू वी मतलब कॉस्ट ऑफ ई से एफ तक का कॉस्ट, वो है 1, तो यहाँ पे 1 लिखूंगी। अप्लाइंग रिलैक्सेशन फॉर्मूला, लेट्स चेक। डी ऑफ यू मतलब 6 प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी मतलब 1, इज इट लेस देन
8. Is 7 less than 8? Yes. और जब यस आंसर आता है उसके केस में अपडेशन होता है, तो हम क्या अपडेट करेंगे, डी ऑफ एफ अपडेट करेंगे, मतलब डी ऑफ वी है ना, विच इज डी ऑफ एफ, and it becomes d of u plus cost of uv, which is what, 6 plus 1. तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और प्रीवियस वर्टेक्स क्या बना इसका, e है ना, e से लेके f तक गए हम, बाकी ये तो रिलैक्स्ड है, ये भी रिलैक्स्ड है, ये भी रिलैक्स्ड है, दिस इज ऑल्सो रिलैक्स्ड, और ये 0, और ये था हमारा स्टेप 5. अब हमें क्या क्या रिलैक्स हमने क्या क्या रिलैक्स किया, ये रिलैक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और सिर्फ एक ही बचा है. सिंस वी हैव ऑल द रिलैक्सेशन ऑफ एवरी अदर वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से कुछ रिलैक्स नहीं हो सकता, जो बचा है 7 बचा है एंड एवरी अदर इज रिलैक्स्ड, तो आप कहाँ भी जाओ 7 पे से सब रिलैक्स्ड ही है, राइट. तो 7 को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, जब एक बचता है उसका रिलैक्सेशन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप रिलैक्स हो जाता है. तो आई विल just remove this formula, remove this table, so I can write the final answer. फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है ये आपको बता देती हूँ. ये टेबल बहुत जरूरी है, ये टेबल आपको एग्जाम में भी बनाना है. दिस टेबल मेक्स यू अंडरस्टैंड कि डिस्टेंसेस क्या क्या है ईच एंड एवरी स्टेप में, और उस वर्टेक्स का प्रीवियस वर्टेक्स क्या है. तो अब क्या करना है, स्टार्टिंग वर्टेक्स, let me choose another color for the answer. So starting vertex is B, vertex का नेम, उसका डिस्टेंस और प्रीवियस वर्टेक्स. सो B से B तक जाने का रास्ता है 0, प्रीवियस वर्टेक्स नहीं है. B से A तक जाने का डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो 3, और प्रीवियस वर्टेक्स है C. B से C तक जाने का डिस्टेंस है 1, और प्रीवियस वर्टेक्स है B ओनली. B से D तक जाने का डिस्टेंस है 3, और प्रीवियस वर्टेक्स है B. B से E तक जाने का डिस्टेंस है 6, और प्रीवियस वर्टेक्स है उसकी D. और B से F तक जाने का डिस्टेंस है 7, और उसकी प्रीवियस वर्टेक्स है E. अब आप देखोगे, बैक ट्रैक करोगे इस आंसर को, तो आपको सिर्फ अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ग्राफ मिलेगा. ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर. ये है मेरा फाइनल आंसर. सारे स्टेप्स इस टेबल में आते हैं, आपको हर एक रिलैक्सेशन एग्जाम में परफॉर्म करना है. सो लेट्स conclude our statement here, conclude our problem, conclude our solution. So हमें shortest distances every vertex तो मिल गए हैं from starting vertex, and this is our answer. I hope you understood the problem, and next part में हम इसका C++ language में implementation देखेंगे. Thank you.